430. There is a rock that is higher than I, a mighty rock that I can run to. If I abide there, I will never be moved. His name is Jesus, my firm foundation. When the children of Israel wandered in a desert land so dry, the smitten rock he gave them to drink. Jehovah Selah, that rock was Christ. There is a rock that is higher than I, a mighty rock that I can run to. If I abide there, I will never be moved. His name is Jesus, my firm foundation. When the ground all around me is shaking and I fear my feet may fall, I cling to him who steadfast and true, the rock of ages, my strength, my all. There is a rock that is higher than I, a mighty rock that I can run to. If I abide there, I will never be moved. His name is Jesus, the firm foundation. When the enemy rages against me with his lies and evil plans, I listen to the voice of my Lord. He keeps me safely within his hand. There is a rock that is higher than I, a mighty rock that I can run to. If I abide there, I will never be moved. His name is Jesus, my firm foundation. Oh, the Lord is my strong habitation. He's a shelter from the storm. I great I tower in him I love, but the one who hides me safe and secure. There is a rock that is higher than I, a mighty rock that I can run to. If I abide there, I will never be moved. His name is Jesus, my firm foundation. In the arms of the one who does soul me, wonders, praise and joy is mine. Until he comes, I'm kept in his love. I'll go with him, oh, rapture divine. There is a rock that is higher than I, a mighty rock that I can run to. If I abide there, I will never be moved. His name is Jesus, my firm foundation. There is a rock that is higher than I, a mighty rock that I can run to. If I abide there, I will never be moved. His name is Jesus, my firm foundation. There is a rock that is higher than I, a mighty rock that I can run to. If I abide there, I will never be
सब लोग बैठ जाइए। माइक सही करो, आवाज ठीक नहीं लग रही, आवाज अच्छा नहीं लग रहा, आवाज सही नहीं लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमसे बात करने के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। खुदावंद हमारे जीवन में के सारे भलाइयों के लिए हम तारीफ करें। Praise the Lord, 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 praise the Lord। हमारे चेन्नई कन्वेंशन को अभी तक खुदावंद आशीष करके दिया, इसलिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। खास करके इस शाम के आराधना प्रभु बोझ उठाना चाहिए। आप लोग लगातार प्रार्थना में रहिए। खुदावंद बड़े बड़े काम संतों के द्वारा देश में करना चाहिए, प्रभु के नाम के महिमा के लिए करना चाहिए, तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। आज प्रभु अपने हमारे साथ बर्ताव करना चाहिए, तारीफ करें। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रभु की आत्मा, प्रभु हमें अगुवाई करना चाहिए, तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। प्रकाशित वाक्य आज के ध्यान के लिए पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 का 10 और 11। For today's meditation, we will read the book of Revelation, chapter 22, verse 10 and 11. प्रकाशित वाक्य 22 का 10 और 11। Revelation, chapter 22, verse 10 and 11. फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। नीचे भी अगला वचन भी। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of the Lord. ये जो है प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब, आखिरी अध्याय के आखिरी वचनों में हम ध्यान किया। Today we are meditating about the last book, the last chapter and the last verses. इसमें लिखा है कि जो अन्याय करने वाला अन्याय करें, And here it is written, he that is unjust, let him be unjust still. जो मलिन है और मलिन होता जाए, He which is filthy, let him be filthy still. जो धर्मी है और धर्मी बना रहना And चाहिए, he that is righteous, let him be righteous जो still. पवित्र है और पवित्र बना रहे। And he that is holy, let him be holy still. ये वचन कितने सालों के पहले संत यूहन्ना के द्वारा लिखे गए थे, This verse was written by Saint John before so many years. लेकिन इस वचन जो है इन दिनों में हम अपने आंखों से देख सकते हैं, पूरी होते हुए हम महसूस कर सकते हैं। And in these days we can see that and we can feel that these words are getting fulfilled. क्योंकि अन्याय करने वाला अन्याय करते ही रहता है। Because he that is unjust, they are unjust still. जो मलिन है और मलिन होते जा रहे हैं। He which is filthy, they are getting filthy more and more. लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? The word of God speaks to us like this. धर्मी बना रहना चाहिए। He that is righteous, let him be righteous जो still. पवित्र है और पवित्र बना रहना चाहिए। And he that is holy, let him be holy मैं still. शीघ्र आने वाला हूँ। And behold, I come quickly. अनेक लोगों को अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। And my reward is with me to give every man according as his work shall be. इस बात को हम अपने मन में रखें, इन आखिरी दिनों में जीवन व्यतीत करना चाहिए। We have to keep all these words in our mind and work accordingly in these last हमारे days. हर एक कामों के अनुसार, हर एक हम जो बोलने वाले लफ्ज के अनुसार प्रभु के पास प्रतिफल है। The word that we speak, every word that we speak, we have a reward with God. हर एक कामों के बारे में हमको लेखा देना पड़ेगा। We have to give account for every work that we do. इसलिए वचन में लिखा है हम अंतिम दिनों में पहुंचे हैं। That's why it is written in the word of God, we have come to the last बुरे दिन days. हमारे सामने हैं, Evil days are before us. इसलिए हम डरते कांपते हुए जीने का समय है। This is the time that we have to live with fear and trembling. हाँ, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। The word of God says to us like this, that Jesus is coming very soon. इसलिए अन्याय करने वालों की तरफ ध्यान नहीं करना चाहिए। We should not look to the people who are doing injustice. जो मलिन है वो उनकी तरफ हम ध्यान नहीं करना We चाहिए। should
should not see to those people who are filthy. जो धर्मी है उसी पर हम ध्यान करना है, We have to meditate on those who are righteous. जिस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया, We are made righteous by the precious blood of उस Jesus. धार्मिकता में हम लोग बढ़ते जाना चाहिए। We have to grow in that righteousness still. हम जिस बुलाहट के लिए हमें बुलाया, कि पवित्रताई के लिए हमें बुलाया, उस पवित्रताई के उस चोटी पर पहुंचने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। The Lord has called us with an holy calling, and we have to attain to go to that holiness. इसलिए इन दिनों में, आखिरी दिनों में, ये वचन पूरे होने के समय पर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। We are living in a days where these words are getting fulfilled. आप लोग ये नहीं सोचना है कि वो अन्याय करते हैं, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसा क्यों, ये सब सवाल नहीं करना चाहिए। You should not say that this person and that person is doing injustice and why. We should not ask questions like this. प्रभु हमारे लिए जो सच्चाई, जो वचन प्रकट करके दिया है, उसकी हम पालन करना चाहिए। The word that is revealed to us, the word that God has given to us, we have to walk accordingly. जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, हमारे आने का समय कैसा होगा, The disciples asked Jesus, how will the last days be? प्रभु यीशु मसीह, लूका के इंजिल 17 अध्याय में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा, जब जैसे नूह के दिनों में हुआ, जैसे लोत के दिनों में हुआ, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। When we read in the epistle of Luke, the 17th chapter, we read that as it happened in the days of Lot, and as it happened in the days of Noah, it will happen in the days of the Son of Man. इसलिए हम इन दिनों में देखते हैं, जो है अन्याय, अधर्म, सब जगह में अन्याय और अधर्म बढ़ते जा रहे हैं। And when we see in the world, there is so much of injustice and filthiness happening all around us. जगह प्रथम जो है उस पृथ्वी पर ये अन्याय और अधर्म बढ़ने के कारण जल प्रलय के द्वारा भूमि को नष्ट किया था। In the beginning, as because injustice was abounding, God has to destroy the earth with a flood. क्योंकि नूह के समय में जो है लोगों का अधर्म, लोगों का पाप जो है प्रभु परमेश्वर के जो है हजूरी तक पहुंच गया। In the days of Noah, the injustice of people and the sin of the people reached God. इसमें जो कि परमेश्वर ने ठाना, जो मनुष्य को बनाया, इससे वो खेदित होकर पूरे दुनिया को नाश करने के लिए मन में ठान लिया। It repented God for making man, and he desired to destroy the whole earth. क्योंकि वचन में लिखा है, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय में हम देख सकते हैं, जो को मनुष्य के अंदर निरंतर बुराई जब भी उठते हैं, सारी बुराई निरंतर होता रहता है। When we read in the book of Genesis, the 6th chapter, we can read that the thoughts of his heart was only evil continually. उस वचन को पढ़िए। Let's read that verse. Genesis chapter 6 and verse 5. 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। उनके विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह सब निरंतर जो कि बुराई है। Every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. हम इन दिनों में भी देख सकते हैं कि जो कि निरंतर बुराई दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। And even in these days we can see evil abounding. हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, You know better than us. क्योंकि हम जो कि आप पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, पूरी दुनिया भर के न्यूज़ देखते रहते हैं, सब कुछ दुनिया में क्या हालत है करके आप जानते हैं। You people, the believers read newspapers, and you know so many newses, and you know how the world is going on. हम देखते हैं कि जो कि निरंतर बुराई दुनिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। Evil is abounding continually in the world. इसलिए जो कि नूह के जैसे दिनों में जैसे थे, वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। The Lord Jesus Christ said that as it happened in the days of Noah, it will happen in the days of the Son of Man. आज सुबह परमेश्वर की आत्मा हमसे बर्ताव किया। The Lord was speaking to us this morning. हमारे रास्ता जो है गलत रास्ता हमने लिया है। We have taken the wrong way. प्रभु का हाथ को छोड़ दिया। We have left the hand of God. हम जो रास्ते में चल रहे हैं सोचते हैं कि यही सही मार्ग है, The way in which we are going, we think that this is the right way. लेकिन ये मृत्यु का मार्ग है। But these are the ways of death. इस मार्ग में हम चलते जाएंगे, गड्ढे में जाके गिरेगा। When we go on in this way of death, we will fall into the pit. टेढ़े हटीले रास्ते में चलेगा, वे लोग अनर्थकारियों के साथ तुम्हें जाने दूंगा करके वचन में कहता है। When we read in the word of God, when we take a perverse and crooked way, we will perish with the ungodly people. क्योंकि 125 भजन संगीता आखिरी वचन में लिखा है,
जो टेढ़े मार्ग लेते हैं अनर्थकारियों के साथ जाने देगा. When we read in 125th Psalm and the 5th verse, it is written that as for such as turn aside unto their crooked ways, the Lord shall lead them forth with the workers of iniquity. पढ़िए उस वचन पढ़ो. परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा, इज़राइल को शांति मिले. जो टेढ़े मार्ग में चलेगा, परमेश्वर के मार्ग छोड़कर चलेगा, उन्हीं को अनर्थकारियों के साथ प्रभु जाने देगा. When we walk in crooked ways, when we turn aside from the Lord shall lead us forth with the workers of iniquity. नूह के दिनों में ऐसा ही था. नूह प्रचार करते ही रहा, वचन सुनाते रहा. As it happened in the days of Noah, he was preaching, he was telling about the word of God. वो बोला है कि बहुत बड़े बारिश वर्षा होने वाले, जलप्रलय आने वाला है, मन फिराओ करके बोला. He was telling a great flood is going to come, rain is going to come, you repent. इन दिनों में भी हम लोग प्रचार करते हैं, जगह जगह में कन्वेंशन क्यों रखा जाता है? In these days we are preaching and so many conventions are held here and there. Why? यही प्रचार करने के लिए. In order to preach these words. यीशु मसीह के आगमन करीब है. The coming of the Lord is very near. ये दुनिया नाश होने वाली है. The world is going to perish. तो दुनिया से बच जाओ. You should escape this आप world. उस जहाज के अंदर आ जाओ. Come into the ark. क्योंकि नूह के समय पर केवल नूह जो कि परमेश्वर की नजर में जो कि अनुग्रह पाया करके लिखा है. When we read in the word of God, it is written that Noah found grace in the eyes of the Lord. इसलिए उसको बचाने के लिए परमेश्वर कोशिश किया. So in order to deliver him, in order to bring him to escape, the Lord was striving. उसी के लिए परमेश्वर कहा है कि तुमने एक जहाज बनाना है. That's why the Lord told him, you make an ark. केवल 8 प्राणी जो कि जहाज के द्वारा बच गया. 8 people were preserved through the flood. इस इन दिनों में प्रभु हमसे क्या कहता है? In these days, what is the Lord telling to us? अभी जो कि लकड़ी गोफेर के लकड़ी से बनाए हुए जहाज इन दिनों में नहीं दिखाई देते हैं. We don't see an ark which is made of such an gopher wood. लेकिन परमेश्वर हमारी एक नए नियम की कलीसिया दिया है. But the Lord has given us a New Testament church. इस कलीसिया की संगति दिया है. The Lord has given the fellowship of the संतों church. जो प्रेरितों को दिया है. The Lord has given us the apostles. परमेश्वर का वचन हमें प्रकट करके दिया है. The Lord has given the word of God that is revealed to us. ये वचन हमें क्या जताता है? What does the word of God say to प्रभु us? यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है. The coming of the Lord Jesus Christ is very nigh. नूह के समय में जलप्रलय के द्वारा नाश किया. In the days of Noah, it was destroyed by flood. लेकिन इस पृथ्वी को इस अभी किसके लिए रखा गया? And this world is reserved for what? आग के द्वारा भस्म करने के लिए. It is going to be destroyed by fire. इसलिए बच जाना करके परमेश्वर का वचन कहता है. The word of God says that you have to escape these things. लेकिन वचन में लिखा है अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले लोग उठेंगे. It is written in the word of God that in these last days scoffers will arise. दूसरा पत्रस 3 का वचन पढ़िए. जो कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले लोग उठेंगे. वो बोलेंगे पहले की तरह जब से बोला वैसे ही आज तक ही है. दूसरा पत्रस 3:3. पहले ये 3 का 3. दूसरा पत्रस 3 का 3. पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले हंसी आएंगे, ठट्ठा करने वाले लोग जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था. कई लोगों का कहना आजकल क्या है? What is the saying of many people in these days? जब से हमने जन्म लिया यही सुनते आ रहे हैं. From the day of birth we are hearing these things. यीशु मसीह आ रहे, यीशु मसीह आ रहे, अब तक आया नहीं. Jesus is coming, but still he had not come. अपने अभिलाषों के द्वारा चलने के लिए ऐसे हंसी मजाक करने वाले लोग अंतिम दिनों में उठेंगे करके वचन में पढ़ते हैं. It is written in the word of God that they shall be come in the last days scoffers walking after their own lusts. वे क्या कहते हैं? What did they say? जब से हम सुनते आ रहे हैं कुछ भी अभी नहीं हुआ. From since the father fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. आगे देखा जाएगा. We will see what is going to happen ahead. जब वो आएगा हम देखा जाएगा. When he comes, we will see. ऐसा नहीं. It is not like that. हम जैसे सुनते आ रहे हैं इन दिन आखिरी दिनों में सारे संभव सारे घटनाएं देखने से प्रभु यीशु मसीह द्वार पर आ गया है. We are in the last days when we see all the things happening, we can understand that Jesus is on the door. वचन में लिखा है कि वो जो द्वार पर आ गया है, He have come to he is at the doors. उसको चलने का आहट सुनाई देता है.
the sound of his walking is, we can hear his sound. जब अदन के बगीचा में जब परमेश्वर चलते आए, उसकी आवाज सुनकर जो है आदम हवा ने अपने आप को छिपा दिया. When God was walking in the Garden of Eden, when Adam and Eve heard his voice, they hid themselves. वहाँ इसमें लिखा है परमेश्वर चलने का आहट सुनकर वो डर गया. Hearing the voice of God walking, he was afraid. इन दिनों में ये आहट क्या होता है, ये चलने का शब्द क्या होता है? What is this voice of walking? यही है यीशु मसीह के आगमन के हर एक चिन्हों को प्रकट करता है. This reveals the signs of the coming of the Lord Jesus Christ. एक चिन्ह के बारे में जब हम सुनेंगे, हम सोचना चाहिए कि यीशु मसीह के जो है आहट सुनाई दे रहे, वो द्वार पर आ गया है. When we hear about the signs of the Lord coming, signs of the coming of the Lord Jesus Christ, we should know that he is walking and his voice is heard and he is इसलिए at हम the लोग doors. डरते कांपते ये जीवन बिताना चाहिए. We have to live with fear and trembling. वही जो है उत्पत्ति की किताब जाके 6 में या 7 में लिखा है, वो भूमि में लोग अपने मार्ग को बिगड़ गया, पृथ्वी बिगड़ गया. When we read in the book of Genesis, is written that every flesh have corrupted his way upon the earth. और क्योंकि उनके रास्ते बिगड़ गया, They have corrupted their way. अपनी मार्ग ले लिया. They have taken their own way. निरंतर परमेश्वर की नजर में बुराई करते रहेगा. They were doing evil continually. इसी के बीच में एक नूह था जो धर्मी पुरुष था. In the midst of these people, there was one Noah who was a perfect man. परमेश्वर के साथ चलता था. He was walking with God. परमेश्वर की आवाज सुनता था. He was hearing the voice of God. परमेश्वर उस प्राणी को, उससे 8 प्राणियों को बचाने का कोशिश किया. The Lord was striving to save all these 8 people. 8 प्राणियों को बचा दिया. He saved all the 8 people there. बुलाए हुए लोग बहुत हैं. There are many who are called. इन दिनों में कलीसिया में देखते हैं बुलाए हुए लोग बहुत हैं. When we see in the church today, there are many people who are called. लेकिन चुने हुए लोग बहुत कम हैं. But those who are chosen are few. उठा लिए जाने वाले लोग बहुत कम हैं. Those who are going to be raptured at the coming of the Lord will be very few. जैसे उन दिनों में 8 प्राणी बच गया, इसी तरह इन दिनों में बहुत कम लोग यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. As 8 people were saved through the flood, very few people are getting ready for the coming of the Lord for the rapture. इसलिए हम लोग जो है डरते कांपते जीना चाहिए. That's why we have to live with fear and trembling. वचन में क्या पढ़ते हैं? What we read in the word of God, 2 जन एक बिस्तर में होंगे, 2 will be in one bed, एक उठा लिया जाएगा, one will be caught up, दूसरा छोड़ दिया जाएगा. the other will be left behind. एक जो है चक्की पीसते होंगे, One will be grinding, और दो जन चक्की पीसेंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा. 2 will be grinding in the mill, one will be taken away and one will be left behind. 2 जन खेत में काम करते होंगे, 2 will be working in the field, एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा. one will be caught up, one will be left behind. आप अपने जीवन को जांच के देखें, इस झुंड में हम कौन से झुंड में हम पाए जाते Let हैं. us all examine ourselves as in which group are we found. रात के समय 2 जन सोते रहते हैं. In night 2 people will be sleeping. एक जन को परमेश्वर की आत्मा जगाता है, The Lord's Spirit will revive. वो प्रार्थना करते हैं, One will be praying, और दूसरा सोते हैं. the other will be sleeping. 2 जन चक्की पीसते हैं. 2 will be grinding. एक जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में ध्यान करते हुए चक्की पीसते रहते हैं. One will be always remembering about God and he will be grinding the mill. 2 जन खेत में काम करते हैं. 2 will be working in the field. एक का मन कहाँ है? Where will the mind of one be? अब अभी इन दिनों में हम कहेंगे तो हम लोग बाल बच्चे हैं, परिवार को देखना है, ये देखना है, हमसे नहीं होगा करके कहते हैं. In these days we will say that we have children, we have family and we have so many things. ये 3 झुंड जो उठा लिए गए हैं, ये लोग परिवार के लोग नहीं थे. The people who were caught up at the coming of the Lord, they also had a family. वो उनके परिवार थे, They had a family. उनको काम थे, They had some work to do. उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ा है, They did not leave their business. चक्की पीसने का काम नहीं छोड़ा है. They did not leave the work of इनके grinding. बीच में यीशु मसीह के आगमन के बारे में, परमेश्वर के बारे में ध्यान करते रहा. In the midst of all these, they were remembering about the coming of the Lord Jesus. इसलिए जो है हम लोग प्रभु के आगमन के बारे में हमेशा ध्यान करना चाहिए. That's why we have to remember about the coming of the Lord Jesus Christ always. लूत के दिनों में क्या हुआ? What happened in the days of लूत Noah? के दिनों के जैसे होगा करके परमेश्वर का वचन कहता है. The word of God says that as it happened in the days of Lot, it will happen in the days of the Son of Man. लूत के समय में भी जो है कैसी बुराई है इन दिनों में दिखाई दे रहे हैं. What evil were there in the days of Lot?
We can see in these days also. यहेजकेल की किताब 16 अध्याय में हम देख सकते हैं When we read in the book of Ezekiel chapter 16, सोदोम का पाप क्या है करके वहां लिखा हुआ है। we can read about the sin of Sodom. यहेजकेल की किताब 16 अध्याय सदोम का पाप क्या है करके वहां बयान किया। 49. 49वां वचन, देख 16 का 49। देख तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के घमंड खाती- करती, पेट भर भर के खाते हैं, और सुख चैन से रहती सुख थी, चैन से रहते हैं, और दीन दरिद्र को ना संभालती थी। दीन दरिद्र को नहीं संभालते हैं। अतः वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, वह गर्व करते हुए मेरे सामने घृणित काम करने लगी। घृणित काम करने लगे। और यह देखकर मैंने बस यही जो कि सदोम का पाप, These are the iniquity of Sodom. इन दिनों में ये सदोम का पाप हमारे बीच में, सदोम हमोरा का पाप जो कि दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। In these days, we can see the sin of Sodom and Gomorrah in this world. इतने घमंड करते हैं, We are full of pride. सबसे ज्यादा परमेश्वर बैर करने वाले स्वभाव है घमंड क्या। This is the character which the Lord hates. हम घमंड नहीं करना चाहिए, We should not be proud. हम हलीम के साथ रहना We चाहिए। have to live with all humility. जो कि हम परमेश्वर को, वचन में लिखा है, तू पेट भर के खाओगे पियोगे और परमेश्वर की स्तुति करोगे। It is written in the word of God, you will eat, you will be satisfied in plenty and you will praise the Lord. जोएल की किताब में लिखा है, तुम पेट भर के खाओगे पियोगे और परमेश्वर के नाम को महिमा करोगे। जोएल की किताब 2 अध्याय 26 से क्या, प्रभु हमें भोजन समय समय पर भोजन क्यों देता है? Why does the Lord give us food in time? 26. 26वां वचन, 2:26. तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। स्तुति करना है। हाँ, स्तुति करने के लिए हम खा पी कर परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। And ye shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your इसलिए God. इन दिनों में हम क्या देखते हैं? What do we see in these days? परमेश्वर का महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए समय नहीं। In order to praise the Lord, in order to give glory to God, we don't have time. बाकी सारे काम चलते रहेगा। All other works will be going घर का on. काम हो, ऑफिस का काम हो, कहीं भी हो, सारे काम चलते रहेगा। In our home and in our business, all our works will be going on. लेकिन प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, But we don't have time to pray. स्तुति करने के लिए समय नहीं We है। don't have time to praise God. स्तुति करने के लिए उठेंगे थक जाते हैं, थकावट। When we get up to praise, we are so weary. दिन भर काम किया, थकावट है। We have been working the whole day and all because of that we have become weary. इसलिए परमेश्वर को प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, That's why we are not able to pray to God. स्तुति नहीं कर पाते We are not हैं। able to praise God. हमें प्रार्थना करने के लिए देश में प्रभु हमें रखा है। The Lord has kept in this earth that we might pray and praise God. नाश होने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें रखा है, The Lord has kept us that we might pray for the perishing स्तुति souls. करने के लिए रखा है। The Lord has kept us that we might praise हर एक Him. परिवार के लिए हम स्तुति करना है। We have to praise for each and every family. कितने लोग जो सुबह उठकर हर एक परिवार के लिए, सेवकों के लिए, देश के लिए धन्यवाद करते हैं। How many of us get up early in the morning and praise for all the servants of God, for the believers and for the सदोम land? का पाप ही यही था, This is the iniquity of Sodom. स्तुति धन्यवाद नहीं करते थे, They don't praise God. They don't give thanks. घमंड करते थे They are proud. और सुख चैन से रहते थे। They are living with all luxuries. कष्ट उठाने के लिए मन नहीं। They don't have a mind to suffer. हम अपने परिवार के लिए कष्ट उठा दिए, सच बातें। We are suffering for our own family. That's true. प्रभु के लिए कष्ट उठाने के लिए मन नहीं। We don't have a mind to suffer for God. समय पर मीटिंग में आने के लिए मुश्किल, We don't have time to come to the meetings. सच्चाई के लिए खड़े रहने के लिए मुश्किल, We are not able to stand for the truth. ऐसे जब ये दुख उठाने के लिए मुश्किल, We are not able to suffer for God. सुख चैन से रहना चाहते हैं। We want to live a luxurious life. एक बीमारी होते एक सेकंड के अंदर चंगाई मिलना चाहिए। When we fall sick, within 1 second we want deliverance from that इलाही शिफा sickness. के सच्चाई को बेच दिया। We have ईश्वरीय चंगाई के लिए कोई
खड़े नहीं रहते We हैं। don't stand for the divine healing. क्यों? इसलिए सुख चैन से रहना चाहते हैं, We want to live a luxurious life. और जो कि गर्व करते हैं, We are proud. घृणित काम प्रभु के सामने करते हैं। We do abominable things before ये God. घृणित काम क्या है? What is this abomination? नीति वचन 6वां अध्याय में लिखा है, We read in the book of Proverbs chapter 6. छह बातों से परमेश्वर नफरत करता है, 6 things that the Lord hates. 7 बातों से परमेश्वर घृणा करता है। 7 things are abomination to him. नीति वचन 6 का 16. 16वां वचन। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करवाने वाला मनुष्य। ये सारे घृणित बातें These are abominable things. परमेश्वर की नजर में सब घृणित बातें, These are abomination in the sight of God. यानी घमंड से भरी हुई, आंखें छड़ी हुई, A proud look and a lying tongue. जो कि अपने हर एक अंगों के बारे में वहां लिखा है। It is written about all the members of our हम body. इसके सामने हम अपने जीवन को जांच कर देखना चाहिए। Before this, we have to examine ourselves. हमारा देखना कैसा है, How is our looking? हमारे बैठना कैसा है, How is the way we हमारे sit? उठना कैसा है। How is our uprising? दावीद कहता है कि मेरा बैठना उठना तो छानबीन करता है। King David says that you know my down sitting and my uprising. प्रभु हर वक्त हर घड़ी हमारे ऊपर नजर रखता है। Every minute and every second, the Lord is looking to us. हमारे मुंह से निकलने वाले बातें कैसे हैं, How is the word that is coming out of our mouth? जो कि वचन में लिखा है, व्यर्थ बातों के लिए, निकम्मे बातों के लिए भी प्रभु के सम्मुख में लेखा देना पड़ेगा। It is written in the word of God that for every idle word that we speak, we have to give account to God. कुछ लोग मुंह खुल गया तो जो भी बोल मुंह में आएगा एकदम बोल देता है। When we see some people, when they open their mouth, they speak unwanted things. बाद में एक सॉरी बोल देते हैं। उसके बाद after that they say sorry. सॉरी बोल गया तो हो जाएगा। When you say sorry, will everything be वचन में okay? लिखा है यहोवा के भक्त लोग आपस में बात किया, वो जो कि परमेश्वर का एक स्मरण की किताब है उसमें लिखा गया है। When we read in the word of God that the people who feared will speak one to another, and a book of remembrance is written for them. दुनिया के लोगों के बारे में नहीं लिखा। It is not written about the people of यहोवा this के world. भक्त लोग आपस में बात किए, परमेश्वर ध्यान धरकर सुना है। The people who fear God spake one to another, and the Lord hearkened and heard it. उनके निमित्त एक स्मरण के जो कि पुस्तक लिखे जाते हैं। And a book of remembrance was written before him for them that fear the Lord. और जो कि मलाकी की किताब 3 अध्याय 16वां वचन, 3:16, Malachi मलाकी 3:16. 3:16। सारे बच्चे भी बाइबल खोल के पढ़ें। कई बच्चे जो कि मोबाइल लाके खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। पढ़िए 3:16 पढ़िए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हाँ, उसके नाम का सम्मान भी करते हैं, आदर करते हैं। परमेश्वर के आदर करने वाला है। We have to honor God. और परमेश्वर का जो कि भक्त लोग हैं, They fear the God. लेकिन ये एक बात है जो कि प्रभु के हजूरी में पहुंचता है। Each and every word will reach the presence of God. हम लोग पिछले दिनों में एक बहन के बारे में बातें कर रहे थे। In the some days before, we were talking about a particular sister. एक सिस्टर जो कि ट्रांस में जाते, She went on a trance. वहां पर जाके जो कि संतों को सब देख के आए। She went into a trance and she saw all the servants of God and the saints. पास्टर विल्सन से बात हुआ करके कहते हैं। It was she told that she saw Pastor Wilson. तो यहाँ की कुछ बातें जो है पास्टर विल्सन जो है कुछ बातें कहा करके सुनने में आया। We heard that what happened in this earth, it was reheard by Pastor Wilson. वो बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर इस पृथ्वी पर
ये एक उंगली हिलाने से भी स्वर्ग में वहां पहुंचता है. The sister who went into a trance was telling that Pastor Wilson, he told like this, it seems, even if we move a little finger, it will be recorded in heaven. देखो कितना भयानक बात है. See how terrible it is. हम सोचते हैं कि कुछ भी कोई नहीं जानते हैं, परमेश्वर नहीं देखता है. We think that nobody knows, God is not watching. देखो हर एक लफ्ज के लिए हम लेखा देना पड़ेगा. For every idle word we have to give account to God. उनके सामने हम अपने आप को जांच के देखें. We have to examine ourselves before these कितनी words. भयंकर बातें हम बोल दिया. How terrible things we are speaking. कितनी हंसी मजाक करते हैं. We are scoffers. दूसरों के बारे में बुराई करते हैं. We backbite. ये सब कुछ स्मरण की किताब में लिखे नहीं जाएंगे क्या? Will all these not be written in the book of remembrance? प्रभु के सामने कैसे खड़े रहेंगे? How will we stand before the Lord? एसेकिएल की किताब में लिखा है कि जिस दिन मैं तुम्हारे साथ मैं अपने कार्य करूंगा, तुम्हारे हाथ कैसे हिम्मत से रहेगा. When we read in the book of Ezekiel, it is written that when I will your hands be strong when I ask account of you. एसेकिएल की किताब में ये वचन लिखा हुआ है. It is written in the book of മലയാളം में Ezekiel. लिखा है, ഞാൻ നിന്നോട് കാര്യം തീർക്കുന്ന നാളിൽ നിന്റെ കൈകൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുമോ. When I endure with, will your hands be strong? जब परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करेगा, किताब खोल के रखेगा, हम बच सकेंगे. When the Lord opens all the book, will we escape? परमेश्वर के लोगों बहुत हम इन दिनों में डरना चाहिए. The people of God we have to live with all fear. हम in these परमेश्वर days. को प्रसन्न करना We चाहिए. have to please the Lord. नूह परमेश्वर के सम्मुख में प्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह किया. Noah pleased the Lord, and that's why he found grace in the eyes of the Lord. लूत के ऊपर परमेश्वर जो है परमेश्वर अनुग्रह किया करके लिखा है. It is written in the word of God that Noah found grace in the eyes of the Lord. लूत के ऊपर भी परमेश्वर दया किया. The Lord, the Lot also had a favor with God. क्यों लूत को खुदा ने बचाया? Why did the Lord made an escape for him? क्योंकि दुनिया के सारे बुराई अधर्म के कामों को देख देख कर अपने धर्मी मन में वो पीड़ा उठाता था करके पत्रस के किताब में लिखा है. When we read in Peter that when seeing all their ungodly and injustice, he had a vexation in his spirit. शायद दूसरी पत्रस दूसरे अध्याय में जो कि अधर्म के कामों को देख कर अपने धर्मी हृदय के अंदर वो पीड़ा उठाता था, दुख उठाता था. 2 Peter 2:7-8. दूसरा पत्रस 2:7 और 8 पढ़िए, जल्दी पढ़िए. और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के धर्मी लूत सदोम अमोरा पाप से भरे हुए, उसके बीच में एक जन का नाम परमेश्वर पुकारता है, धर्मी लूत. The Sodom and Gomorrah was filled with all sin, but in the midst of all this, the Lord is calling him just Lot. और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था. सच्चे मन को पीड़ित करता था. He vexed his righteous इसका soul. मतलब क्या है? What is the meaning of this? प्रार्थना करता था. He was praying. दुनिया को देख के वो पीड़ा उठाता था. Seeing the world, he had a pain. प्रार्थना करता था. He was praying. प्रार्थना में खराता था. He was प्रार्थना में वो खराते रहता था, रोते रहता था. he was weeping in prayer. क्यों? इसलिए जो कि परमेश्वर उसको बचाया. That's why the Lord preserved him. इसलिए हम इन दिनों में प्रार्थना करना चाहिए. We have to pray in these स्तुति days. करना चाहिए. We have to praise देश him. के बचाव के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए. For the escape of this world, we have to pray. इसलिए परमेश्वर आने में देर करता है. That's why the Lord is delay is coming. तो बुराई से भरे हुए इस संसार को परमेश्वर जो कि सदोम अमोरा और नूह के समय पर पृथ्वी को नाश किया है. As the world was filled with sin, the Lord destroyed this world as in days of Sodom and Gomorrah. अभी इस वर्तमान युग में हम जो रहते हैं, We are living in this present evil world. इससे पृथ्वी का क्या हाल होगा? What will happen to this world? इसके लिए आग में झोंका जाएगा करके लिखा है. It is written in the word of God. It is reserved for fire. इसलिए हम देखते हैं कि दूसरा पत्रस 3:10 और 11 पढ़ें. 2 Peter chapter 3 verse 10 and 11. परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ उससे जाएगा. पहले पढ़ो. प्रतिज्ञा के विषय देर करता है. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता,
जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह सब कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के सबसे ज्यादा रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सारे जल जाएगा, Everything will be burned up. कोई बचेगा नहीं। Nothing will escape. ये इस पृथ्वी जो है आग के लिए रखा गया। This world is reserved for fire. जैसे सदोम अमोरे के अंदर जो है स्वर्ग से आग बरसा, ये संसार के लिए भी प्रभु ऐसे ही दिन को ठहराया हुआ है। As Sodom and Gomorrah was destroyed fire, this world is also reserved for इसलिए fire. परमेश्वर के प्यारे लोगों से हम क्या करना चाहिए? So what we have to do, इन सारे आने वाली घटनाओं से हम बचकर परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनना है। we have to escape all these things and we should be worthy in order to stand before the Son of Man. ये अंतिम दिन के बुरे दिन के सारे स्वभाव काम जो कि पूरी दुनिया में फैल रही है। The evil characters, evil deeds are getting spreading in the world. कलीसिया के अंदर भी प्रवेश कर रही है। It is in the church also. इसलिए हम इससे बचना चाहिए। We have to escape all these हम things. दूसरा तीमुथियुस में देखते हैं कि अंतिम दिनों में बुरे दिन आएंगे। When we read in the book of Timothy, it is written that in the last days perilous times shall come. तीसरा अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ें। 2 Timothy chapter 3 and verse 1. दूसरा तीमुथियुस 3 का यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। देखा, ये सब स्वभाव कहाँ के? अंतिम दिनों में होने वाला, बुरे दिन में होने वाला है। These are the characters of the last इसलिए days. जो कि तीमुथियुस कहता है, That is why इससे हम बच के रहना चाहिए। we have to escape all these things. माता पिता को बातों को टालने वाला ये कहाँ से आया? Disobedient to parents, from where did they come? इस बुरी संसार से ही अंदर आता है। It is coming from the present evil world. बच्चे जो आज्ञा नहीं मानते, सोच लेना बुरे दिन का, अंतिम दिन का स्वभाव मेरे अंदर आ गया। When children don't obey to the parents, you have to understand that character of the last days have entered into me. उस वचन को ध्यान से घर में जाके पढ़िए। You have to go home and read all these verses. ऐसे कोई भी स्वभाव हमारे अंदर है तो If you have such a character, हम बच नहीं सकता है। we cannot escape. नाश के लिए रखा है, We are kept for destruction. जलाए जाने के लिए रखा है। We are kept to be burnt हम इन दिनों up. में देखते हैं कि बहुत से लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। In these days, we can see that many people, they don't have the fear of प्रभु के God. हसूरी में बैठने के बावजूद भी डर के बगैर बैठते हैं। When we see, they are seated in the presence of God, but they are seated without the fear of God. खेल कूद में समय बिताते हैं। They are jumping here and there. खेलने के लिए They are playing. आज्ञा नहीं मानते, They are not obeying. बड़ों की आज्ञा नहीं मानते, They don't obey the माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, They don't obey the parents. टीचर्स की आज्ञा नहीं मानते। They don't obey the teachers. कोई भी बच नहीं सकता है। You cannot escape. इसलिए नूह के समय में, लूत के समय में जैसे दिन था, वही दिन इन दिनों में दिखाई दे रहे हैं। As it happened in the days of Noah and as it happened in the days of Lot, we are seeing in these days also. इसलिए हम इनसे बचना है। We have to escape all these things. प्रभु हमें चेतावनी देता The है, Lord is exhorting us. इसलिए वचन को पढ़ के ध्यान करना We चाहिए। have to read the word of God and meditate अंतिम it. दिनों में होने वाली बातों को ध्यान करना चाहिए। What will happen in the last days, the signs of the coming of the Lord, we have to meditate. हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। Our Lord Jesus Christ is coming very हम soon. प्रभु को प्रसन्न करना है। We have to please the Lord. नूह को अनुग्रह मिला। Noah found grace. कैसे अनुग्रह मिला? How did he get that grace? जो अपने को नम्र करता है उन पर प्रभु अनुग्रह करेगा। Everyone that humble himself, the Lord will give grace to them. हम जितना हो सकते अपने आप को हलीम करें। The more we can, we have to humble ourselves. हम अपने आप को शून्य समझें। We have to think that we are zero. हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं। We don't have anything to be proud. संत पौलुस कहता है कि मैं जो कुछ हूँ अनुग्रह से हूँ। Paul says that what I am by the grace of इसलिए God. उस अनुग्रह को पाने के लिए प्रभु को हम प्रसन्न करना है। In order to receive that grace, we have to please Him. मलाकी की किताब में लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करो, वो तुम्हें अनुग्रह करेगा। When we read in the book of Malachi, it is written that you fear the Lord and the Lord will be gracious unto thee. अभिमानियों का सामना करता है। He resists the proud. यदि 1% भी अभिमान
या घमंड हमारे जीवन में रहेगा, प्रभु हमें मोड़ के भी नहीं देखेगा। If we have 1% of pride in our lives, the Lord will not even turn back to us. सबसे ज्यादा नफरत करने वाला भयंकर जो कि स्वभाव ये घमंड है। This is a very great character which the Lord hates. इसलिए हलीम से रहेंगे, प्रभु अनुग्रह करेगा। When we live a life of humility, the Lord हम will जो be कि gracious हम अपने unto us. हम जो कि प्रभु का धार्मिकता हम पाए हुए लोग हैं। We are the people who have received the righteousness of God. धार्मिकता के ऊपर हम धार्मिकता प्राप्त करना चाहिए। We have to receive righteousness upon वचन में righteousness. लिखा है तुम्हें पवित्रता के लिए बुलाया। It is written in the word of God, the Lord has called us unto holiness. दूसरा कोरिन्थियों 7वां अध्याय का पहला वचन पढ़ें। Let's read 2 Corinthians chapter 7 and दूसरा verse 1. कोरिन्थियों 7 का पहला वचन। 2 Corinthians chapter 7 and 1. अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता का सिद्ध करना चाहिए। Perfecting holiness in the fear of God. धार्मिकता का काम करना चाहिए। We have to work righteousness. धार्मिकता के कपड़े हम पहनना We चाहिए। have to put on the robe of हम righteousness. जो कि यदि पाप करें धार्मिकता का चादर उड़ जाएगा। When we sin, the robe of righteousness will depart from प्रभु us. हमें पहनाए हुए सारे वस्त्र हमारे जीवन में है क्या करके जांच कर देखना We है। have to examine ourselves whether we have all the garments that the Lord has given us. पवित्रता को सिद्ध करने के लिए हमारे अंदर परमेश्वर का भय है क्या करके जांच कर In देखना है। order to perfect holiness, we have the fear of हम God. इस दुनिया से बचना है। We have to escape from this world. प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। Our Lord Jesus Christ is coming very वो soon. कहता है कि अन्याय करने वाला अन्याय करने दो, He is telling that he that is unjust, let him be जो unjust मलिन still. है वो मलिन होने दो, He that is filthy, let him be filthy still. और जो पवित्र जो धर्मी है और धर्मी बना He रहे, that is righteous, let him be righteous still. जो पवित्र है और पवित्र बना He रहे। that is holy, let him be holy still. इसलिए जो है हम आखिरी दिनों में आए हैं। We are in the last days. हम न्याय के लिए नहीं बुलाया, We are not called for judgment. दंड प्राप्त करने के लिए नहीं बुलाया। We are not called that we might receive condemnation. हमारे यीशु चोर के समान आएगा। The Lord will come as a thief. हम जागते रहेंगे क्या? Will we watch? प्रार्थना करते रहेंगे Will क्या? we pray? उससे मिलने के लिए हम तैयार रहेंगे क्या? Will we be ready to meet the Lord Jesus? क्योंकि ये सारी घटनाओं को देखने के समय अपने सिर को उठाओ, सीधे हो जाओ और सिर को उठाओ करके वचन में लिखा है। When we read in the word of God, it is written that when we see all the signs of the coming of the Lord, you lift up your head. मैं सुनने में आया अमेरिका में जो कि इतना बड़ा एक रिवाइवल हो रहे हैं। I heard that there is a great revival in America. जो कि 20 बच्चे केवल चर्च में जाके गीत गाया बोलते हैं। 20 children went into a chapel and they were गाते singing. गाते लोग इकट्ठे हो गए। When they were singing, all the people were gathered together. लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। Lakhs of people they are getting इतने together. लोग जो कि वहाँ बड़ी बेदारी हो रहे हैं। There is a great revival over there. हम भी बेदार हो जाएं। We should be revived. दुनिया की हालत को देखकर हम बेदार हो जाएं। When we see the happenings of the world, we should be बुराई से revived. बच जाएं। We should escape the evil. नोह के समय में, लूत के समय का वही बात इन दिनों में दिखाई देते What हैं। has happened in the days of Noah and happened in the days of Lot, it is happening in these days also. वचन में लिखा पुराने बातें सब कुछ भी नया नहीं है, जैसे पुरानी बातें वही इन दिनों में भी दिखता है। It is written in the word of God that what happened in the past is happening now also. Nothing is new. क्योंकि जो है सबोपदेशक में लिखा है। It is written in Ecclesiastes chapter 1 verse 9. 1:9 पढ़िए। सबोपदेशक 1:9। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। कुछ भी नया नहीं है। There is no new thing under the आप sun. सोचेंगे कुछ भी पुराने समय में भी क्या मोबाइल था? In the olden days, ऐसे we सवाल have उठ सकता है। you have a question like this. क्या मोबाइल पुराने में भी था, पुराने समय में था? In the olden days, did we use mobiles? मेरे ख्याल से होगा पक्का, According to my knowledge, they have used mobile phones. क्योंकि वचन में लिखा है, Because it is written in the word of God. है ना, 19 भजन संगीता में लिखा है, It is written in 19th है ना, Psalm. कोई बोली नहीं, कोई भाषा नहीं, लेकिन तेजी से जो है बातें पहुंच जाता है दूसरे छोर तक। There is no line, no connection, but the words that we speak they reach to the भजन other side. संगीता 19 में शायद कौन सा भजन? വാക്കുകളില്ല ഭാഷണമില്ല ശബ്ദം കേൾപ്പാനില്ല। 3. तीसरा वचन पढ़े। ना तो कोई बोली है ना कोई बोली है और ना कोई भाषा, कोई भाषा, जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं कुछ देता। शब्द सुनाई भी नहीं दे रहे।
अभी यहाँ बैठे बैठे अम्मा जी ने ऐसे ऐसे बोल दिया, ऐसे ऐसे प्रचार किया, अब तक कहाँ पहुंचे होंगे मालूम नहीं, लेकिन कोई बोली नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई भाषा नहीं, चुपचाप पहुंच जाता है। We are sitting here, we don't have, there is no speech nor language, but some people they will reach the news. क्यों क्यों Why? कैसे? And how? इसमें इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए वो वचन। Read that verse in English. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line has gone out through. लाइन ऑनलाइन है ना, इंग्लिश में लिखा है एक लाइन, वो लाइन में ऑनलाइन में खाना आता है, ऑनलाइन में बातें होती है, ऑनलाइन में सामान करता है, सामान मंगवा सकता है, सब कुछ ऑनलाइन में हो गया। In English translation it is written line, everything has become online. इंग्लिश वही में लिखा है सब लाइन में। It is written in the English translation. तो इसका Everything will मतलब be क्या है? online. पहले थे, It happened वही before. आज भी दिखाई दे रहे हैं। It is happening today also. ये सब कुछ जो कि पुरानी बातें हैं, It is all old things. ये अंतिम दिनों में और शैतान इसको और भी नया करके नया आविष्कार ले आता है। In these last days, through Satan, he brings so many inventions now. इसलिए जो कि हम लोग अपने आप को हलीम करें। So we have to humble ourselves in हम these इस days. दुनिया के साथ नाश होने के लिए नहीं बुलाया, We are not called that we might perish with the हम world. यीशु के साथ राज्य करने के लिए बुलाया। We are called in order to reign with the स्वर्गीय Lord स्थान Jesus. हमारे लिए तैयार कर रहा है। The Lord has kept heavenly places for us. एक नए यरूशलेम सिय्योन हमारे लिए तैयार हो रहे हैं। New Jerusalem and Zion is prepared for उसी us. के लिए प्रभु हमें बुलाया, And for that reason, the Lord has उसी called के लिए हम us. तैयार हो जाएं। For that reason, we have to हमारे prepare चाल ourselves. चलन को हम बदलें, We have to change our हमारे conversation. बोलचाल को हम बदलें, We have to change our words. सच्चाई के मुताबिक चलें, We have to walk rightly. वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। We have to walk according to the word of God. हमारे यीशु जल्दी आने वाला है। Our Jesus is coming very सब soon. लोग घुटनों में आ जाएं, Let's all be on our सब लोग knees. घुटनों में आ जाएं, Let's all come to our knees. आंखों को बंद करें, Let's all close our eyes. प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। Let's all be prepared for the coming of the सब लोग Lord. थोड़ी देर हम तारीफ करेंगे। We'll praise God for some time. प्रभु के आत्मा हमारे बीच में काम करने दे, The Spirit of the Lord, let it walk in our midst. प्रभु हमें तैयार करने दे, Let the Lord prepare us. हर बुराई से बचाने दे। The Lord preserve us from all evil. सब लोग थोड़ी देर मुंह खोल के तारीफ करेंगे। Let's all open our mouth and praise God. हालेलुया हालेलुया। सदोम अमोरा जैसे पाप बढ़ रहे सनाशा सारों सतावे बढ़ रहे, सदोम अमोरा जैसे पाप बढ़ रहे विनाशी साओ सतावे बढ़ रहे क्षण भर में दुनिया में चाहता नहीं रहना तेरे साथ वास करने को जल्दी ले जा क्षण भर में दुनिया में चाहता नहीं रहना तेरे साथ वास करने को जल्दी ले जा ओ मिलन का दिन कितना करीब है ओ आनंद का दिन कितना अजीब है ओ मिलन का दिन कितना करीब है ओ आनंद का दिन कितना अजीब है संसार के दुखों को भूल कर मैं मगन रहूंगा पिता के राज्य में संसार के दुखों को भूल कर मैं मगन रहूंगा पिता के राज्य में समय है बीत रहा पूरे दिन आ गए सब बातों का अंत निकलते आ रहा समय है बीत रहा पूरे दिन आ गए सब बातों का अंत निकलते आ रहा हर दिन प्रेमी की आस लगाए हो मेरे दाम हम प्रभु यीशु आजा मुझे तू ले जा हर दिन प्रेमी की आस लगाए हो मेरे दाम हम प्रभु यीशु आजा
खरबनम सिरिबिके नमगनम खलम शिनानम खलबकतिना हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के राज्य के लिए प्रभु हमें योग्य बनाना चाहिए। The Lord should prepare us for that day. वो अचानक प्रकट हो जाएगा, The Lord will appear very soon. अचानक प्रकट हो जाएगा। He will appear for us. हम जब सोचते नहीं ऐसे समय पर वो प्रकट हो जाएगा। The day when we don't think about it, the Lord will appear for उससे us. मिलने के लिए प्रभु हमें तैयार करना The चाहिए। Lord should prepare us in order to meet Him. कोई भी छोड़ दिया नहीं जाना चाहिए, No one should be left behind. कोई भी परिवार छोड़ दिया नहीं जाना चाहिए, None of the family should be left कोई भी behind. सेवक नहीं छोड़ दिया जाना The servants चाहिए। of God should not be left behind. खुदा सबको योग्य बनाने के लिए तारीफ करेंगे। For the Lord to prepare each and every one of us. Let's all praise Praise the God. Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। हमारा आत्मा प्राण शरीर प्रभु के हाथों में सौंप देकर तारीफ करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। जल्द आने वाले यीशु के लिए तारीफ करें। Praise the Lord, praise the Lord। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए तारीफ करें। परमेश्वर के लोग वापस आते सही सलामत घरों में पहुंचना चाहिए, तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord। आज के सारे सेवा आशीष करना चाहिए। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। संडे स्कूल सेवा आशीष करना चाहिए, तारीफ करेंगे। एरिया प्रेयर आशीष करना चाहिए, तारीफ करेंगे। इस हफ्ते के सारे कार्यक्रम जैसे मीटिंग होते हैं वैसे होते जाएगा, खुदा आशीष करना चाहिए, तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आसमानी बाम शुक्र और तारीफ करते हैं। खुदाम जब तक तेरे हसूरी हमें दिया खुदाम, तो अपने लोगों के साथ बर्ताव किए प्रभु जी, हमें दिए सारे आशीषों के लिए हम शुक्र करते हैं खुदाव। तो हमें बुलाया, अलग किया, नाश होने वाले दुनिया से बचकर हमारे लिए तैयार करने वाले सियोन यरूशलेम के लिए बुलाया, उसके लिए हमें योग्य बना दे, हर बुराई से पाप से हमें बचा दे खुदावंद। लूत के समय में जैसे नूह के समय में ऐसे समय पर हम जीवन व्यतीत करते हैं, हर बातों को देख कर खुदावंद अलग होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में खुदावंद आराधना करते हुए, भय भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हुए तेरे राज्य के लिए तैयार होने के लिए सहायता कर। तेरे लोग वापस आते सही सलामत घरों में पहुंचने के लिए मदद कर। हमारा आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथों में अर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।